السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جواب شاید کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو، پھر بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اور دیکھنا یہ ہے کہ میرا جواب کہاں تک درست ہوتا ہے، کہ میرے جواب میں اور آپ کے پاس موجود جواب میں ہم آہنگی ہے یا نہیں ہے، دونوں میں انسجام ہے یا نہیں ہے، ہم دونوں کے جواب میں یکسانیت ہے یا نہیں ہے، یا یہ کہ میرا جواب غلط ہے اور آپ کا جواب درست ہے۔ سامعین، سوال یہ ہے، سوال سے پہلے میں ہیڈنگ ڈالتا ہوں، سرخی قائم کرتا ہوں کہ آج جو میرا ٹاپک اور موضوع ہے وہ ہے اصل مجرم کون، باپ یا بیٹا۔ سوال عجیب و غریب ہے نا، کہ جرم کی کیٹیگری میں باپ کو بھی کیا کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ شاید اگر میں آپ کے پاس، آپ کے سامنے جو سوالات قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان سوالات کے جوابات اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے یقیناً باپ مجرم ہے۔ سامعین اور ناظرین، یقیناً والد کا بڑا مقام ہے۔ ہر چیز میں والد کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں اولاد کی تربیت کے پس پردہ والد کا جو مقام، والد کا جو رول رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جتنی بھی عظیم شخصیات رونما ہوئی اور زبردست کارنامے انجام دیے، ان کے پیچھے ان کے والدین کا زبردست کردار اور زبردست رول رہا ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں آخر ایسے نوجوان کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں جو طوفان بدتمیزی کا دھارا موڑ دے، جو اس وقت جو حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں ان کا مقابلہ کر سکے؟ شاید کہ اس کی وجہ صرف اور صرف اچھے نوجوانوں کی کمی اور فقدان ہے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، اچھے نوجوان کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں؟ جان باز اور جانثار اور فداکار جوان کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں؟ جواب میرے پاس موجود ہے، اور بغور سماعت فرمانے کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں جو اس وقت ماحول بپا ہے، کیا وہ ماحول اس لائق ہے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا کردار ادا کرے؟ ہمارے گھر کا ہر بچہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا کردار ادا کرے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہمارے والدین ہیں، یقیناً ماں کی توجہ خاص تو ہوتی ہیں، ماں کی دعاؤں بھی شامل حال رہتی ہیں، لیکن والد نے اپنا رول جو ادا کرنا چاہیے تھا، اپنا کردار جو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ کردار ادا نہیں کیا اپنی اولاد کی تربیت کے پیچھے۔ آج ہمارے مدرسے میں کیا تقریباً تمام مدارس اور تمام اسکولوں میں ایسے نوجوان تیار ہو رہے ہیں جن کی عادت بچپن سے ہی نشے کی ہے۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ان کے لیے ایک معمولی سا شغل ہو چکا ہے، یعنی نشے کی قباحت اور نشے کی شناعت اس کے ذہن و دماغ سے بالکل نکل چکی ہے۔ یقیناً آج کے نوجوان، اور آج کے نوجوان کیا آج کے بچے، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، جتنی تیزی کے ساتھ وہ نشہ آور اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں، شاید کہ اس کی مثال زمانہ گزشتہ میں موجود
कम मौजूद मिलती हैं। आज तमाम स्टूडेंट्स, खा वो उसका ताल्लुक मदरसे से हो या स्कूल और कॉलेजेस से हो, आप देख लें गुल का इस्तेमाल करना और सुरती खैनी का इस्तेमाल करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना और इन जैसे नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करना उनके लिए मामूली सा एक मामूली सा उनकी जिंदगी का उसे एक लबे माशूक जिसे कहते हैं, वो लबे माशूक की ताबीर और इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, उन्हें जब भी सुरती की जरूरत पड़ती थी, तंबाकू की जरूरत पड़ती थी, तो वो इस्तेमाल करते थे हमें लबे माशूक पे। ये खूबसूरत सी ताबीर और खूबसूरत से इस्तिलाह हमारे मदरसे के और हमारे स्कूल और कॉलेजेस के और प्राइमरी दर्जात के बच्चों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। सवाल ये पैदा होता है, क्या इन बच्चों की ये लत और इन बच्चों की ये आदत स्कूल में, मदरसे में खराब हुई है या ये कि घर से ही इनकी आदत खराब हो चुकी होती है? अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं और अगर आपके पास हिम्मत है मेरे जवाब सुनने की और मुझे आपके सख्त जुमलों की बिल्कुल परवाह नहीं है, अगर आप बाप हैं, अगर आपकी वो आदत है तो आपको सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। मैं साफ कह सकता हूं कि हमने अपने बच्चों को नशे की आदत और बच्चों को नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करवाने की जिम्मेदार हम हैं। आप कहें कैसे? जब बच्चा छोटा होता है, आपने उनको 2 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, जा तंबाकू लेकर आ, जा गुल लेकर आ, जा शेखर लेकर आ, और पता नहीं कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पुड़ियों की शक्लों में, पन्नियों की शक्लों में, जिसमें कि लिखा हुआ है, साफ सरीह लफ्जों में लिखा हुआ है, जली हरूफ में लिखा हुआ है, यह हानिकारक है जिस्म के लिए, सेहत के लिए, इससे कैंसर भी हो सकता है, बिल्कुल जली हरूफ में लिखा है। आपने अपने बच्चे को पैसे दिए, आपका बच्चा गया दुकानदार के पास, दुकानदार को पैसे दिए उसने, और दुकानदार ने तंबाकू और शेखर और सुरती और क्या क्या चीजें हैं मुझे वो मालूम भी नहीं है, वो सब चीजें खरीद करके आपके बच्चों ने ला करके आपके हाथों में थमा दिया और आपने इस्तेमाल किया। और आप अपने बच्चों के सामने तंबाकू रगड़ते हैं, अपने बच्चों के सामने गुल करते हैं, जबकि ये बात कही जाती है कि बाप अपने बच्चों के लिए आइडियल हुआ करता है। क्या आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के सामने, क्या आपने कभी सोचा यह आदत आपके बच्चों की जिंदगी को खराब कर सकती है? क्या कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी खराब तो हो ही चुकी, लेकिन आपका ये जिगर और आपका ये लाल और आपका ये दिल का गोशा और जिगर का टुकड़ा, उसका मुस्तकबिल भी खराब होने की जिम्मेदारी आप खुद मोल ले रहे हैं अपने सर। मदरसे में बच्चे आते हैं, यहाँ पर भी हैं ऐसे बच्चे हैं, ऐसे तलबा हैं जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। इसका नतीजा मालूम है क्या है? उनके चेहरे की जो खूबसूरती थी वह खत्म होती चली जा रही है, उनके अंदर जो ताकत और कुव्वत और पावर होना चाहिए था वह खत्म हो चुका है। ऐसा महसूस हो रहा है 17-18 साल का जो नौजवान और 17-18 साल के जो तलबा होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए, बुढ़ापे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगी हैं, उन्हें हद से ज्यादा नींद आती है। वजह क्या है? क्योंकि नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके जिम्मेदार उनके गार्जियंस हैं, उनके पेरेंट्स हैं। मुझे माफ कीजिएगा, आजकल मैं मुसलसल में वालिदैन से मुताल्लिक बातें कर रहा हूं कि यकीनन वालिदैन के जबरदस्त हुकूक हैं। कुरान और हदीस नबविया में जो वालिदैन के हुकूक उनके औलाद पर आयद किए गए हैं, इन हुकूक पर मसाजिद में, मकातिब में और स्कूलों में हर जगह बयान किए जाते हैं, जलसों में बयान किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसों में बयान किए जाते हैं। अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो बच्चों के जो हुकूक हैं वालिदैन के ऊपर, उन हुकूक को बयान करने से शायद कतराते हैं या बयान क्यों नहीं करते, अल्लाहु आलम।
क्या फायदा ऐसे बाप बनने से जिस बाप की वजह से बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, जिस बाप की वजह से बेटे को शराब की लत लग जाए, जिस बाप की वजह से बेटे को नशावर चीजों में का इस्तेमाल करने की लत लग जाए, आदत हो जाए, जो आदी हो जावे, दिन रात एक एक रुपये की चीजें होती हैं, लिक्विड होती हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। आप कारखानों में चले जाएं, कारखानों में चले जाएं, आप किसी भी गोशे में चले जाएं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मिलते हैं। आखिर अगर आप बाप हैं तो इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं आपने महसूस की? अगर आज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन बुरी लत और बुरी आदतों से बाज आ जाएं, सबसे पहले ए लोगों मैं आपसे कहता हूं, आप बेटे वाले हो, आप बच्चे वाले हो, मैं आपसे कहता हूं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप नशावर चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर ज्यादा ही इस्तेमाल करने का शौक है, बैतुल खला में चुपके से इस्तेमाल कर लें, लेकिन अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल करने की कभी कोशिश न करें। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बार बार आपसे माफी मांगता हूं, रोजाना मुझे माफी मांगना पड़ता है। और आमतौर से ये बुरी लत और ये बुरी आदतें उन वालिदैन के घरों में हैं, उन बाप के घरों में हैं जिन बाप के पास तो पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों की तालीम पर पैसे खर्च कर सके। आप यौमिया 10 रुपए खर्च करते हैं अपने जिस्म पर, अपनी इस बुरी लत को बढ़ावा देने के लिए रोजाना 10 रुपए खर्च करते हैं। देख लें, 5 रुपए में गुल का पैकेट, 5 रुपए में सुरती वगैरह वगैरह अगर देखेंगे, फिर 5 रुपए या 10 रुपए में पान, अगर आप यौमिया देखें, आप रोजाना 200 रुपए या 300 रुपए मजदूरी करते हो और उनमें से 15 रुपए यौमिया आप अपने जिस्म पर, जो कि बुरी लत है, बुरी आदत है, उस बुरी आदत को बरकरार रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए खर्च करते हो। अगर आपने 10 ही रुपए खर्च किए तो आपने 30 दिन में कितने खर्च कर लिए? 300 रुपए खर्च किए। काश आपने 100 रुपए बचा करके मकतब के में अपने बच्चे को दे रहे तालीम उस्ताद पर खर्च कर दिया होता तो आपके बच्चे की जिंदगी खूबसूरत हो गई होती, मुस्तकबल ताबनाक, दरख्शिंदा व ताविंदा हो गया होता। लेकिन आपने तो अपने ऊपर भी जुल्म किया है, अपनी बीवी पर भी जुल्म किया और अपने घर को तहस नहस करने का जिम्मेदारी खुद अपने सर मोल ली। फिर किस बात की शिकायत करते हो? आपको आपके बच्चों के असातिज़ा से शिकायत है, मेरा बच्चा तो बुरा हो गया, मेरा बच्चा तो मुझसे तुर्की ब तुर्की मेरे सवाल का जवाब देता है और मुझसे बहस और डिस्कशन करने की आदत हो गई है और वो बेजा मुझसे गुफ्तगू करता है और वो मेरे हर सवाल का जवाब धड़ल्ले से देने की कोशिश करता है। किस बात की शिकायत करते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? याद होना चाहिए, जब भी कोई बच्चा नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, उसके मिजाज में तलखी पैदा हो जाती है। फिर वो नहीं देखता है मेरा बाप है, नहीं देखता ये मेरा भाई है, नहीं देखता ये मेरी माँ है, नहीं देखता ये मेरे घर का बड़ा गार्जियन है, नहीं देखता इन चीजों को। वो हर एक को एक कैटेगरी में रख करके वो बातें करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी को हमने खराब किया। ऐ लोगों जिनके पास बेटे हैं, अगर आपकी आदत है बुरी चीजों का इस्तेमाल करने की, बुरी चीजों के इस्तेमाल करने की, गुल करने की, खैनी खाने की, तंबाकू करने की और शेखर और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, इन नशावर चीजों के इस्तेमाल करने की अगर आपकी आदत है, अल्लाह के वास्ते अव्वलन कोशिश करो आप अपनी आदत को भी खत्म करो। उन पैसों को बचाओ, अपने औलाद की तालीम पर खर्च करो, अपने औलाद की तालीम पर खर्च करो, अपने औलाद की तालीम पर खर्च करो। कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, उनके वालिदैन, मैं रात ही यहाँ पर बच्चों से पूछ रहा था, आपके वालिद मोहतरम क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं? किसी ने कहा पंजाब में, किसी ने कहा लुधियाना, मुख्तलिफ जवाबात इस तरह के आए, यानी घर से बाहर रह करके उनके वालिद मोहतरम काम करते हैं। लेकिन अफसोस होता है उस वक्त जबकि वही वालिद मोहतरम जो घर बार छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपनी बीवी को छोड़ करके घर से कोसों दूर रहकर काम करते हैं और जो पैसे आते हैं उन पैसों का गलत तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, ये सोच करके पैसे मैं कमाता हूँ, मैं जो चाहूँ इस्तेमाल करने लगूँ। याद रहे, आप जो पैसे कमाते हो वह पैसे आपके नहीं हैं, क्योंकि जिस ताकत का इस्तेमाल आपने की है वो ताकत परवरदिगार ने दी है। जिस हाथ का इस्तेमाल आपने किया है वह हाथ परवरदिगार ने बतौर अमानत दिया है। लिहाजा जो चीज़ भी आपके जिस्म में है, 1 रुपया भी आप कमाते हैं तो आप वहीं पर खर्च करें जो अल्लाह तबारक व तआला को जो मकाम खुश करे,
لہذا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، پیسوں کا استعمال کریں، ان کی کاپی پر، ان کے قلم پر، ان کی ڈائری پر اور ان کی کتابوں پر اور جس مکتب میں بھی آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان کی تعلیم پر خرچ کریں۔ اور خدا را آپ کو زیادہ ہی شوق ہے استعمال کرنے کا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کا زیادہ ہی آپ کی عادت ہو چکی ہے، بھوت سوار ہے، تو کسی بند کمرے میں کرو، اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی مت کرو۔ اور اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو کبھی بھی دکان پر اس غرض سے مت بھیجو کہ بیٹے تمباکو لے کر آ جا، بیٹے گل لے کر آ جا، کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس چیز نے آپ کے بچوں کی زندگی کو خراب کر دیا۔ آپ کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا، میرے والد محترم نے یہ گل منگوایا ہے، شاید یہ گل کرنا درست ہے، شاید اس گل میں مزہ آتا ہے جو شیکھر کھاتے ہیں، اور آپ وہیں پر آپ اپنا لعاب دہن جس میں بدبو پیدا ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی افسوس کی بات تو یہ ہے بہت سے ایسے خواتین کو میں دیکھ رہا ہوں جن خواتین کی عادت تمباکو کی ہو چکی ہے۔ افسوس کی بات ہے، وہ بھی پڑیا کھاتے ہیں، 5 روپے میں خرید کر لاتے ہیں، پڑیا کھاتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے منہ میں ڈالتی ہیں۔ لا حول ولا قوت، شرم نہیں آتی ہیں آپ کو؟ صنف نازک ہیں آپ۔ کل ہو کر کے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ بھکاری بن کر کے پیسے مانگتے ہو، غریب مالداروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جھولی پھیلاتے ہو، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ آخر طبیعت کیوں خراب ہوئی ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ خود ہیں۔ لہذا اے میرے باپ اور اے میری ماں، اے میرے بھائی اور اے میری بہن، اگر آپ لوگوں کی یہ بری عادت ہے، بری لت ہے، اللہ کے واسطے اس لت کو ہٹاؤ، ختم کرو، اس عادت سے باز آ جاؤ تاکہ آپ کے بچوں کی زندگی برباد نہ ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔